ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. اتنی سخت تاکید ہے نماز کی، پھر بھی عورتوں میں نماز کی پرواہ نہیں، مردوں میں نماز کی پرواہ نہیں. 100 گھر کی آبادی ہے تو 5 دانت ٹوٹے بوڑھے کا نماز پڑھنا، 95 آدمی کا بے نمازی رہنا، یہ تصور کہاں سے اور کب سے پیدا ہو گیا یہ تو مجھ کو معلوم نہیں ہے. البتہ آج سے 50-100 سال پہلے مسلم سوسائٹی کا ہر فرد یہ سمجھتا تھا میں نماز نہ پڑھا تو میں مسلمان نہیں رہوں گا، اس لیے وہ نماز پاتا ہی پاتا تھا. بغیر نماز پڑھے مسلمان بنا رہنا وہ مشکل سمجھتا تھا. لیکن جب سے میرے دماغ میں لوگوں نے ڈال دیا کہ ایک بار سبحان اللہ کہو جنت چلے جاؤ گے، ایک بار 11ویں کی فاتحہ دلاؤ جنت چلے جاؤ گے، یہ ساری سوچ نے لوگوں کی سوچ کو بگاڑ کے رکھ دیا. فرائض و واجبات سے بے توجہی اور نفل کو وہ پکڑ کے رکھ رہا ہے. یہاں تک سن لے یہ داڑھی پنجابی داڑھی رکھنا اتنا بڑا فرض نہیں ہے جتنا بڑا فرض نماز پنجگانہ پڑھنا ہے. داڑھی کوئی منڈا لے یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ نماز ظہر چھوڑنا، نماز عصر چھوڑنا، نماز مغرب اور عشاء چھوڑنا، کیونکہ یہ فرض اعظم ہے. اب یہاں داڑھی ہے نمازی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسلام نہیں جانتا. اگر وہ جانتا تو پھر داڑھی بھی رکھتا اور نماز بھی پڑھتا تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے اور فرائض و واجبات پہ بھی عمل ہو جائے. اور داڑھی ہے نمازی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ نہیں جانتا کہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم داڑھی منڈانا بھی نہیں ہے. یہ جبہ پہننا یہ ضروری نہیں ہے. جو جبہ پہنے نماز نہ پڑھے اسے اس جبے میں آگ لگا دینی چاہیے، اس پنجابی کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے، اس پائجامہ میں آگ لگا دیا جائے کہ پنجابی ہے اور نماز نہیں ہے. اس سے بہتر ہے وہ پینٹ شرٹ پہنے، وہ پینٹ پہنے جس پینٹ کے پہننے میں نماز شامل ہے، نماز قضا نہ ہوتی ہو، نماز ادا ہوتی ہو. یہ لباس پینٹ شرٹ پہننا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم نماز چھوڑنا ہے. یہ پنجابی پائجامہ پہننا اتنی بڑی نیکی نہیں ہے جتنی بڑی نیکی نماز پڑھنا ہے. یا داڑھی ہے نماز نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اسلام کی روح نہیں جانتا. یہ پنجابی جبہ ہے نماز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اسلام کی روح کیا ہے. وہ اپنے حساب سے 2 ٹکا کمانے کے لیے جبہ پہنتا ہے، 2 روپیہ کمانے کے لیے داڑھی رکھا ہے تاکہ لوگ ہمیں سمجھے کہ پکا مسلمان ہے. اور ہم لوگوں کو ٹھگتے رہے داڑھی بیچ کر، ہم ٹھگتے رہے جبہ بیچ کر. اور اگر یہ سوچ نہ ہوتی وہ داڑھی بھی رکھتا نماز بھی پڑھتا، سنت پر عمل کرتا فرض بھی ادا کرتا، وہ جبہ بھی پہنتا نماز بھی پڑھتا. اور نماز چھوڑ دیا جبہ ڈھو رہا ہے، نماز چھوڑ دیا داڑھی ڈھو رہا ہے. اس جبے میں آگ لگا دینی چاہیے کیونکہ جبہ پہننا فرض نہیں، نماز پڑھنا فرض ہے. نماز پڑھنا فرض اعظم ہے. یہ نماز کا چھوڑنا یہ گناہ اعظم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے ہے. جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے چہرے کا نور اللہ مٹا دیتا ہے. جو ظہر کی نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کی روزی سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کے بدن سے طاقت کو ختم کر دیتا ہے. آج درجنوں بیماریاں، ہر گھر بیماری کا گھر بن گیا. ڈاکٹر کی دنیا آباد ہے، ایک کو ڈاکٹر کے پاس سے لاؤ دوسرے کو لے کے جاؤ. 10 آدمی ہیں 10 بیمار ہیں. ایک بیمار ہی نہیں، خطرناک بیماریاں ہیں، 10 بیماریاں ہیں. دانت میں تکلیف الگ، پیٹ میں الگ، جوڑ میں درد الگ، اور صاحب شوگر الگ، بی پی الگ، ہارٹ الگ، نہ جانے کیا کیا امراض دنیا میں پیدا ہو گئے. ایک بیماری ہو تو اس کو بھولے، یہاں تو درجنوں بیماریاں آدمی کے بدن میں ہے. کیا کہا حضور نے؟ حدیث کا مفہوم ہے جو عصر کی نماز چھوڑے گا ان کے بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی. جو مغرب کی نماز چھوڑے گا ان کی اولاد سے فرما برداری ختم ہو جائے گی. آج سب کو شکایت ہے حضرت تعویذ دے دیجیے. میرے بیٹے کو میں نے پڑھایا لکھایا 10 بیگھہ زمین بیچ کر انجینئر بن گیا اور کسی چھوکری کو دل دے دیا ہے، اسی کے پیچھے پاگل ہے، گھر نہیں آتا ہے. ماں بیمار تڑپتی ہے، چہرہ دیکھنے کو ترستی ہے، گھر نہیں آتا ہے. باپ ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی نہیں ہے. بیٹی 100 کلومیٹر دور سے آ کے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہے. آج جس بیٹے کو 10 بیگھہ زمین بیچ کے پڑھایا تھا، جس کی پیدائش پہ مٹھائیاں بانٹا تھا، جس کی پیدائش پہ شہنائیاں بجایا تھا، جس بیٹے کی پیدائش پہ ساری زندگی وہ ناز کرتا رہا تھا کہ میں بیٹا والا باپ ہوں، وہ بیٹا دغا دے دیا. حضرت اولاد نافرمان ہو گئی، ساس سسر کا غلام ہو گئی. کوئی تعویذ دیجیے تاکہ لوٹ کے آ جائے. 1 لاکھ تعویذ پہنا دو کبھی فائدہ نہ پہنچے گا. تعویذ سے جزوی فائدہ ہوتا ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آم کا پیڑ لگا دے تعویذ لڑکا دے تو کٹہل نکل جائے. گیہوں کا بیج ڈالے اور تعویذ کھیت میں 1 لاکھ تعویذ ڈال دے کہ وہاں سے مکئی نکل جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جس اولاد کی تربیت میں اولاد میں
बाप ने कोताही बरती है, सुन्नत का ख्याल ही रखा है, उसकी औलाद आगे चल के बिगड़ जाए, या 100% कसूर उस माँ बाप का होता है। जो माँ बाप बेनमाजी हो उनकी औलाद कभी फरमाबरदार न पैदा होगी, क्योंकि हदीस का मफहूम है जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उनकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी। यहाँ नमाज छोड़ता रहा, जमीन बेच कर बच्चों को पढ़ाता रहा, नमाज छोड़ता रहा और साहब मकान बीटा बाड़ी सब बेच के बच्चे को पढ़ाता रहा, और पढ़ने के बाद बेटा डॉक्टर बना और किसी छोकरी से मेडिकल कॉलेज में प्यार हो गया, वो भी डॉक्टर नहीं थी, उसी के साथ ब्याह करके डॉक्टर नहीं बोली माँ को छोड़ना पड़ेगा। अब ये डॉक्टर बोलता हाँ छोड़ दूंगा, छोकरी बोलती है बाप को छोड़ना पड़ेगा, ये बोलता हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगा, छोकरी बोलती मैं देहात में नहीं रहूंगी मैं शहर में रहूंगी, बोला हाँ हाँ मैं सब छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। यानी 10 बीघा जमीन बेच के पढ़ाइए भी, सारी जिंदगी फकीर बन जाइए, कंगाल बन जाइए, और बेटा छोकरी के कदमों में सारी जिंदगी दे दे, गिरवी रख दे, माँ बाप को छोड़ दूंगा। अगर हम उस बच्चे की घुट्टी में इस्लाम पिला देते, मुस्तफा की अहादीस उनको बता देते, इस्लाम सिखा देते कि 8 घंटे स्कूल की किताब पढ़, 1 घंटा मुस्तफा की किताब पढ़, और स्कूल भी जा 5 घंटे, और 5 मिनट के लिए मस्जिद भी जा ताकि फजर पढ़ ले, 10 मिनट के लिए मस्जिद जा ताकि सुहर पढ़ ले, स्कूल भी जाना मस्जिद भी जाना, और कॉलेज में पढ़े अलीगढ़ में, जहां से बाप ये फोन तो करता है कि बेटा क्लास चल रहा है कि नहीं, सेमेस्टर पूरा हुआ कि या नहीं, अब कंपटीशन में तुमने पास किया या नहीं, स्टडी कितने घंटे करते हो, ये बाप कभी नहीं पूछता है कि तुमने फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, तुमने असर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, तुमने कभी दिन की किताब का 10 मुताला किया या नहीं किया। नहीं, अब उनका बेटा छोकरी का गुलाम हो जाए, ये कसूर उस बाप का है जिस बाप ने अपने बेटे को दीन नहीं सिखलाया और दीन नहीं बताया और दीन की बात उनसे नहीं की। खाना है कि नहीं, कपड़ा है कि नहीं, लिबास है कि नहीं, पास किए कि नहीं, कितना % नंबर लाए हो, 99 नंबर लाए कि नहीं, यानी ये तो बोल रहा है लेकिन कभी नहीं बोल रहा है अगर कल मर गया तो बेटा तेरा क्या होगा। इसलिए पढ़ाई भी कर, नमाज भी पढ़, कभी झूठ मत बोलना, कभी शराब मत पीना, कभी सिगरेट को हाथ मत लगाना, कभी गुटखा मत खाना, तिलावत कभी मत छोड़ना, रोजाना 10 मिनट के लिए ही सही जरूर पढ़ लेना। सबक याद करने में लगेंगे 5 घंटे, और कब्र के अजाब से बचने के लिए सूरह मुल्क की तिलावत में लगेंगे 5 मिनट। 5 मिनट जरूर रात में लगा के सूरह मुल्क पढ़ लेना, सूरह यासीन की तिलावत कर लेना, सुबह उठना सूरह यासीन पढ़ लेना ताकि दिल का सारा काम संवर जाए, और रात में सोना सूरह मुल्क पढ़ लेना ताकि अज़ाब कब्र से नजात मिल जाए। हमने कभी बच्चों से बात नहीं की, ये तो आम दुनियादारों की बात मैं क्या करूं, जो अपने आप को साहिबाने जुब्बा और दस्तार कहलाता है, जो अपने आप को पढ़ा लिखा हाईली एजुकेटेड कहलाता है, जो अपने आप को दीनदार कहलाता है, दीन से जुड़ा हुआ आदमी कहता है, वो भी अपने बेटों से कभी ऐसी बात नहीं करता, वो भी दूसरों से बातें करता है। ये बोलता है मेरा बेटा 98% नंबर लाया है, मेरा बेटा कंपटीशन में पास कर गया है, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है, मेरे बेटे को ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, मेरा बेटा स्कूल में सबसे टॉप कर रहा है। ये तो बोलता है वो मौलवी, मगर ये नहीं बोलता है मेरे बेटे को सूरह यासीन ज़बानदानी याद है, मेरा बेटा सूरह वाक़िया ज़बानदानी पढ़ता है, मेरा बेटा सूरह मुल्क ज़बानदानी याद है। आला हजरत ने लिखा है शजरा शरीफ में सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क ज़बानदानी याद कर लिए जाए, और जब तक याद ना हो तब तक देख के पढ़े जाए, यानी इसको हर रात पाबंदी से पढ़ा जाए ताकि सूरह यासीन पढ़ता रहेगा, अगर वो मर जाए तो शहादत का मर्तबा मिलेगा। सूरह वाक़िया पढ़े, उनके घर में कभी फक्र फाका नहीं आएगा। सूरह मुल्क पढ़े, अज़ाब कब्र से नजात मिल जाएगी। आला हज़रत ने वसीयत की है, लेकिन कभी हमने नहीं सुना किसी मौलवी की ज़बानी कि मेरा बेटा अलीगढ़ में पढ़ता है, मैंने अपने बच्चों को यासीन रटवा दिया है, मैंने बच्चों को सूरह मुल्क रटवा दिया है, मैंने बच्चों को सूरह वाक़िया रटवा दिया है। वह 10 घंटे कॉलेज की पढ़ाई पाता है और रात में 10 मिनट का टाइम निकाल करके वह 500 बार दरूद पढ़ लेता है। ये सब बातें ही नहीं करता, बोलता कि मेरी बच्ची नाचती है स्कूल में, मेरा बेटा पढ़ता है स्कूल में। मैं कहता हूं बच्ची को दीन सिखाया आपने, अच्छा वो सीख लेगी, वो दीन तो सीख ही लेगी बड़ी होने के बाद। फिर बड़ी होने के बाद जब नाक कटवाती है बाप की, मस्जिद का इमाम है मौलाना बम्बई में, और बेटी छोकरे के
साथ भाग गई, अब मस्जिद की जगह भी छूट गई, जिसको अपनी बेटी को न संभाल सका वो मस्जिद के मसले को क्या संभाल पाएगा। तो ऐसी औलाद जन्म दिया जिस औलाद की वजह से रोजी रोटी का जरिया भी हाथ से गया, इज्जत व वकार भी मिट्टी में मिल गई। ऐसी औलाद जन्म दिया और ऐसी पढ़ाई पढ़ाया कि बेटा इंजीनियर बना और छोकरी को लेके भागा और बाप की मुलाजमत भी छूट गई। यानी औलाद की नाफरमानी। हुजूर ने क्या फरमाया, जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाएगी। जिसने अपने बाल बच्चों को दीन सिखलाया, नमाज की ताकीद की, हुजूर ने कहा था मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दे। जब उस बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए वदरिबुहुम अलैहा, बच्चे को मार के नमाजी बना दे। जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए, हुजूर ने ताकीद की है 7 साल का हो नमाज का आदेश दे, 10 साल का हो मार के नमाजी बना दे। मैंने कभी कहा था बदौली शरीफ में कि हुजूर की सिर्फ इसी 2 हदीस पर मुसलमान अमल कर ले, उसे कोई तबलीगी तहरीक छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसे दिन रात घर घर जाकर के नमाजी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नमाज पे 10 घंटे खिताब करने की कोई जरूरत नहीं है। हर मुसलमान सिर्फ इसी 2 हदीस पर, इसी एक हदीस पर अमल कर ले। हुजूर ने फरमाया है मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उसको नमाज का हुक्म दे, नमाज पढ़ बेटा। और कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, जोहर पढ़ेगा असर छोड़ेगा, असर पढ़ेगा मगरिब छोड़ेगा, ईशा पढ़ेगा फजर छोड़ेगा। लेकिन जब 10 साल की उम्र हो जाए वदरिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र सनीन, हुजूर कहते जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए उसे पिटाई करके नमाजी बना। वफर्रिकू बैनहुम फिल मताजी, जब वह नमाजी बन जाए उसका बिस्तर अलग कर दे। क्या मतलब, हुजूर का इस फरमान में हिकमतों का समंदर पिघा है। आज हॉस्टल में जो अखलाकी बीमारियां, आज जो एक साथ सोने की अखलाकी बीमारियां, 10 साल का बच्चा नमाजी जब बन जाए अपनी बहन के साथ न सोए, अपने हम उम्र भाई के साथ न सोए, वो अब अपनी माँ के साथ न सोए, वो अपने बाप के साथ न सोए। हुजूर कहते हैं फर्रिकू बैनहुम फिल मताजी, उनका बिस्तर अलग कर दो। बिस्तर अलग न करने की वजह से जो हॉस्टल में अखलाकी बीमारियां पैदा हुई, जो समाज में बच्चों का अखलाक गिरा, जो स्कूल कॉलेज में बच्चों की सेहत गिरी, उसमें इसका भी एक हाथ है कि एक साथ मिल के सोना। हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था बिस्तर अलग कर दे ताकि हम उम्र बच्चों के साथ 10 साल के बाद न सोए। यही एक हदीस है। 7 साल का बच्चा हो बाप नमाज का हुक्म दे, 10 साल का हो नमाज ना पढ़े पिटाई करके नमाज पढ़ाए। जब हम पिटाई करके नमाजी बना देगा बच्चे को, तो दुनिया के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बेटियां हैं, जितने भी बेटे हैं, 10 साल के बाद एक बच्चा नहीं मिलेगा जो कि बेनमाजी हो। यानी मुस्लिम सोसाइटी का सारा 10 साल का बेटा पूरी दुनिया का नमाजी बन जाएगा। लड़कियां वो भी नमाजी बन जाएंगी अगर इस हदीस पर माँ बाप अमल कर ले। 1 बीघा जमीन खरीद के बेटे को देना फर्ज नहीं है, मकान बना के देना फर्ज नहीं है। जिस मकान के बनाने के लिए सारी दिन बंबई में जाके नौकरी किया, मजार के सामने चश्मा बेचा, ठेला चलाया, एक रूम बना के दे दिया, शेड हटाया, टीन छत डाल दिया, बेटा बड़ा सुख से रहेगा। मकान बनाना फर्ज नहीं था। क़यामत के दिन अल्लाह की कसम सवाल ना होगा, तुमने अपने बेटे को मकान बना के क्यों नहीं दिया, तुमने अपने बेटे को जमीन खरीद के क्यों नहीं दिया। ये सवाल होगा कि तुमने अपने बच्चे को दीन क्यों नहीं सिखलाया। अगर कोई सड़क पे बच्चे को छोड़ दे, ना जमीन दे ना मकान दे, क़यामत के दिन अल्लाह नहीं पूछेगा, अलबत्ता ये पूछेगा कि तुमने बच्चों को नमाज को दिया या नहीं, अदब सिखाया या नहीं। आज जब अमेरिका के बच्चे बिगड़ने लगे तब वहां के दानिश्वर कहते हैं मकान दुकान ना दे के बच्चों को डिसिप्लिन सिखलाइए, मकसद हयात बताइए। जब यूरोप के बच्चे बिगड़ने लगे, शराबी अय्यास और ड्रग्स के आदी हो गए, अब वहां के दानिश्वर की आंख खुली, वो कहते हैं बच्चों को गिफ्ट में मकान गाड़ी बाद में दीजिएगा, पहले गिफ्ट में डिसिप्लिन दे दीजिए, गिफ्ट में अदब सिखलाइए, उसे जीने का तरीका सिखलाइए। वरना बच्चा जब शराबी हो जाएगा 50 करोड़ का मकान दे के आप मरेंगे, वो मकान बेच के शराब पी लेगा। तुम न जाने कितने करोड़ों की जायदाद भी कई शराब पीते पीते। तो अब अमेरिका की नींद टूटी है, किताबें लिखवाई जा रही हैं, लाखों किताबें लिखी गई दुनिया में औलाद की तरबियत पे कि औलाद की तरबियत कैसे करें, मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पर करोड़ों किताबें तरबियत के ताल्लुक से एक तरफ और हुजूर की एक हदीस एक तरफ। मुस्तफा कहते हैं मां नहला वालिदुन वलदहु मिन नहल, अब
افضل من ادب حسن. حضور کہتے ہیں ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا گفٹ دیتا ہے, وہ گفٹ چاہے ضمیر کا گفٹ, اولاد چاہے زیورات کا گفٹ, چاہے بینک بیلنس کا گفٹ, چاہے ڈاکٹر انجینئر بنانے کا گفٹ, حضور کہتے ہیں ما نہل والد ولدہ من نہل افضل من ادب حسن, یعنی اچھا ادب, تربیت اور اچھی تعلیم دینے سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہے. یعنی کروڑوں بیگھہ زمین چھوڑنا اس سے بہتر ہے بچے کو ادب سکھا دینا, ڈسپلین سکھا دینا, حیات کا مقصد بتا دینا, اسٹینڈ آف لیونگ کا طریقہ بتا دینا, معیار حیات سکھا دینا, طرز زندگی بتا دینا, انسان بنا دینا. پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کروڑوں کا گھر بنا لیں, پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ نارمل ڈیلیوری کو سیزرنگ کر کے اپنی عمارت اٹھاتی رہے اور اپنے بچوں کو امریکہ پڑھاتے رہے. چاہے جانور بننا پڑے, جھوٹ بولنا پڑے, ادب کا سارا دائرہ تار کرنا پڑے, چاہے اخلاق کے سارے کپڑے کو پھاڑنا پڑے, چاہے جانور بننا پڑے, مگر پیسہ چاہیے. آج اکثر ڈاکٹر جانور بن گئے, جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیا, نارمل ڈیلیوری کو سیزرنگ کروانے میں جھوٹ کا سہارا لیا. اگر تمہیں 1 گھنٹے میں آپریشن نہیں کروایا تو تمہارا بچہ بھی مرے گا اور زچہ بھی مر جائے گی, یعنی ماں بچے دونوں مر جائیں گے. اب یہ آدمی ڈر کے مارے زمین بیچ کر ڈاکٹر کو 50,000 دیتا ہے اور اپنی بیوی کو سیزرنگ کرواتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ساری عورتیں سیزرنگ سے پیدا ہوں گی, یعنی جو بھی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اب ان کے سارے بچے سیزرنگ سے پیدا ہوں گے. ہاسپٹل میں جانے کا مقصد سیزرنگ سے پیدا ہونا, کوئی اکا دکا کوئی 1-2 ہو, نارمل ڈیلیوری ہو پاتی ہے, صرف پیسہ گرم ہونا چاہیے. گورنمنٹ سے بھی خفیہ منصوبہ ہوا ہے, گورنمنٹ سے بھی پیسہ ملے گا اور پھر وہ میڈیکل کی دکان سے پیسہ آئے گا, پیتھولوجی کے یہاں سے پیسہ آئے گا. اب وہ ڈاکٹر ایک مریض پہ 50,000 روپے کمائے گا, کیونکہ ان کا بیٹا امریکہ میں پڑھتا ہے, ان کو ہر 2 لاکھ روپے ہر مہینے بھیجنا ہے, ان کو 2 کروڑ کی زمین خریدنا ہے, 50 لاکھ کی کار خریدنی ہے. ڈاکٹر بننے کا مقصد زمین, شاندار بڑی زمین خریدنا, بڑا مکان بنانا, بڑی کار خریدنا. اب وہ چاہے جانور بننا پڑے, اس کو پیسہ چاہیے. ڈاکٹر بن گیا انسان نہیں بن سکا, ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا انسان نہیں بن سکا. اب رشوت لے کے مکان کا نشہ دماغ پہ چھایا ہے. اب عام لوگ بناتے ہیں 10 لاکھ کا مکان, مجھ کو بنانا ہے 10 کروڑ کا مکان. اب 10 کروڑ کہاں سے آئیں گے؟ اب رشوت کو اپنا شیوا بنا لیا, پیشہ بنا لیا. اوپر سے بھی پیسہ گورنمنٹ سے لینا ہے اور ٹیبل کے نیچے سے ٹھیکیداروں سے پیسہ لینا ہے. اور یہ پل بنے نہ بنے, سڑک بنے نہ بنے, سائن کر دینا ہے. مسالہ دے نہ دے, سیمنٹ کمزور, سریا کمزور, اب پاس کرنے کہاں سڑک بن گئی, مکان بن گیا. اب رشوت کے پیسے پہ اپنی عمارت کھڑی ہو رہی ہے. یعنی آج لوگ اولاد کی ڈاکٹر کی صورت میں جانور جنم دے رہے ہیں, انجینئر کی صورت میں جانور پیدا کر رہے ہیں. ہم نے انجینئر تو بنانے کی کوشش کی, پر ہم نے کبھی دین نہیں سکھلایا, مصطفیٰ کی حدیث نہیں بتایا, 5 منٹ مسجدوں میں گزارنے کا سلیقہ نہیں دیا, اور اولاد ہاتھ سے نکل گئی. حضور کیا کہتے ہیں؟ جو مغرب کی نماز چھوڑے گا اولاد سے فرما برداری ختم ہو جائے گی. خوب اجمیر دوڑتے رہیے, خوب امام صاحب سے تعویذ لے کے بچے کو پہناتے رہیے, کوئی کام نہیں دے گا. کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے اسی بیج ڈالنے کی طرح کہ بیٹا فلاں ڈاکٹر بن گیا, 50 کروڑ کما لیا, تو بھی پڑھے گا لکھے گا کمائے گا. فلاں انجینئر بن گیا, 2 لاکھ مہینہ کماتا ہے, تو بھی پڑھے گا لکھے گا کمائے گا. فلاں مولانا بن گیا, 5 لاکھ مہینہ بمبئی میں کماتا ہے, تو بھی پڑھے گا لکھے گا, 5 لاکھ مہینہ کمائے گا. فلاں بمبئی میں گیا, کام سیکھ لیا, 10 لاکھ کما لیا, 10 گھر بنا لیا, تو بھی جائے گا کمائے گا, 10 گھر بنائے گا. اور بچوں کے دماغ میں نے پیسہ ڈالا ہے کہ پڑھنے کا مقصد پیسہ کمانا, انجینئر بننے کا مطلب پیسہ کمانا, ڈاکٹر بننے کا مطلب پیسہ کمانا, مولانا بننے کا مطلب پیسہ کمانا. اب وہ مولانا اگر بمبئی میں فجر نہ پڑھے ٹیوشن پڑھائے, ظہر نہ پڑھے ٹیوشن پڑھائے, عصر نہ پڑھے ٹیوشن پڑھائے, مغرب نہ پڑھے ٹیوشن پڑھائے, عشاء نہ پڑھے ٹیوشن پڑھائے, یعنی صبح سے شام تک 10 ٹیوشن پڑھائے, 10 ہزار روپے پر ٹیوشن لے لے, 1 لاکھ مہینہ کمانا ہی کمانا ہے. ٹیوشن پڑھا کے, سورہ بقرہ پڑھ کے, سورہ یاسین پڑھ کر کے, فاتحہ پڑھ کر کے, اور سب جیسے بھی ہو پڑھنا ہے, ہمیں پیسہ کمانا ہے. نماز چھوٹے کوئی پرواہ نہیں, پیسہ چاہیے, کیونکہ باپ نے اس کے دماغ میں ڈال دیا ہے فلاں مولانا بنا 10 لاکھ کما لیا. اور مولانا بننے کا مقصد پیسہ کمانا. ہم نے کبھی نہیں بتایا کہ فلاں مولانا بنا جنتی بن گیا, مصلح بن گیا, نیک بن گیا, متقی بن گیا, اچھا انسان بن گیا, پڑھے گا لکھے گا, شریف بنے گا, نیک بنے گا, سماج کا سدھارک بنے گا, شریف بنے گا. ہم نے تو مدرسے کو اجاڑ دیا. مدرسے میں غریب پڑھتا ہے, مسکین پڑھتا ہے, مادروں کے بچے نہ پڑھیں گے,
होगी। तो इसलिए हमारा मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री, ये मदरसा जब उजड़ गया तो शरीफ कहाँ से मिलेंगे, इंसान कहाँ से मिलेंगे, मुत्तकी कहाँ से मिलेंगे। इंसान बनाने की फैक्ट्री ही कमजोर हो गई तो प्रोडक्शन कहाँ से आएगा। अगर मैं इस फैक्ट्री को मजबूत करता तो यहाँ से मुत्तकी पैदा होता। आज से 200 साल पहले सारे नौजवान बच्चे मदरसे में पढ़ते थे, इंजीनियर भी बनते थे, आर्किटेक्ट भी बनते थे। ताजमहल का इंजीनियर मदरसे का पढ़ा, लाल किला का इंजीनियर वाला, लाल जामा मस्जिद दिल्ली का इंजीनियर, आगरा के ताजमहल का इंजीनियर, यानी इसी मदरसे की चटाई का पढ़ा हुआ वो मुत्तकी भी बनता था, वली भी बनता था, मुहद्दिस भी बनता था और शानदार इंजीनियर भी बनता था। उस वक्त माँ गोद में बच्चों को लेकर दुआ करती थी, इलाही मेरे बच्चे को मुजाहिद बना देना, मैं मुत्तकी बना देना, नेक बना देना। जब माँ दुआ करती थी तो अल्लाह बेटे को सलाहुद्दीन बनाता था, औरंगजेब बनाता था, टीपू सुल्तान बनाता था। उस वक्त उनका बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता था, मुजाहिद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पैदा होता था। आज मेरा बेटा डांसर पैदा होता है, आज मेरा बेटा जोकर पैदा होता है, आज मेरा बेटा चारों तरफ से बाल मुंडा के बीच में मुर्ग की तरह बाल रखने वाला जोकर पैदा होता है। मेरा बेटा 2-4 छोकरी के पीछे पागल होने वाला वो छोकरा पैदा होता है। मैंने कभी अपने बच्चों की तरबियत करते हुए मैंने कभी नहीं सोचा, उनकी गुट्ठी में नहीं पिलाया कि पढ़ने का मकसद इंसान बनना, शरीफ बनना, मुत्तकी बनना। जब माँ गोद में मुजाहिद बनने की दुआ करती है तो बेटा बागी नहीं वफादार पैदा होता है। सुल्तान टीपू जब अंग्रेजों से उनका भाई बात करने गया, वहां से लौट के आने में ताखीर हुई तो सुल्तान टीपू अपनी माँ के पास गया, बोलता अम्मी जान मेरा भाई लगता है बागी हो गया है। माँ खड़ी हो गई, कहने लगी बेटा टीपू ये तुमने कैसे सोच लिया कि मेरा बेटा अपने भाई से गद्दारी और बगावत करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस हासिल है कि मेरा बेटा अपने भाई के साथ कभी खतारी नहीं करेगा। कहा कैसे? कहा मैंने अपने बेटे को कभी बगैर वजू के मैंने दूध नहीं दिया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा कभी खतार नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम ताज शरिया कॉन्फ्रेंस। यानी माँ हो मुत्तकिया तो बेटा का नेक होना तय है। उस माँ को क्या कहेंगे जिस माँ ने गोद में लेकर अपने बच्चों के मुहद्दिस बनने की तमन्ना की थी। मदीने पाक की जमीन गवाह है, एक इस्लाम का मुजाहिद जिनका मकसद दीन बचाना, दीन फैलाना, इस्लाम के दुश्मनों से लड़ना था, वह दीन बचाने के लिए सरहद पे चला गया है। वो 18 साल का नौजवान मुजाहिद सरहद पे गया है, 1 साल वहां रहा। अब घर लौटने की तमन्ना दिमाग में थी, लेकिन फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ। फिर वह दूसरी सरहद पे गया, फिर आवाज आई तीसरी सरहद से इस्लाम बचाओ। इस तरह से उनकी मुद्दत बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि 30 साल वो घर से बाहर रहा। जब भी आने का इरादा करता आवाज आती इस्लाम बचाओ। चला सरहद पे दुश्मन ने जलगार किया है, दुश्मन को करारा जवाब देना है। मुजाहिद इस कीमती जवानी का इस्तेमाल इस्लाम बचाने के लिए कर, वो वहां चला जाता। 30 साल के बाद जब थोड़ा सा इत्मीनान नसीब हुआ, वो वापस लौट के मदीना आए। मदीना आए, रसूल पाक के रोजे पे हाजिरी दी होगी। मस्जिद नबवी में दर्स हदीस की महफिल सजी थी। उस महफिल में वो बैठ गए और देखा मदीने का एक मुहद्दिस है, वो शानदार फज़क अता शानदार लिबास में मदीने के उलमा के सामने दर्स हदीस दे रहे हैं, यानी हदीस सिखा रहे हैं। बड़े बड़े उलमाए मदीना वो निगाहें नीची करके उस शेखुल हदीस से हदीस का दर्स ले रहे हैं। वो भी उस महफिल में बैठ गया। दिल ही दिल में तमन्ना पैदा हुई, मदीने कितने बड़े बड़े उलमा जिनसे सबक ले रहे हैं, हदीस का दर्स ले रहे हैं, कितना बड़ा खुशनसीब है वो जिसने इस बेटे को जन्म दिया है। यानी शेखुल हदीसी के मनसब पर फाइज उलमा के मदीने का सरदार जो ऊंची मसनद पर बैठकर सबों को हदीस का दर्स दे रहा है, मुस्तफा की मस्जिद में दर्स दे रहा है। दिल में एक तमन्ना उभरी, एक बादल की तरह आई तमन्ना और गई, काश मेरा बेटा होता, मेरी नस्लें फख्र करती। ऐसा खुशनसीब बाप जिसने से बेटे को जन्म दिया है, जो उलमा का सरदार है, उलमा जिससे दर्स ले रहे हैं। हाँ, वो अब तमन्ना भी कैसी अजीब थी, जो 30 साल सरहद पे रह के वापस आया है, इस्लाम की खिदमत करके आया है, इस्लाम के दुश्मनों से लड़ के आया है। उनके दिमाग में घर मकान की तमन्ना नहीं थी, उनके दिमाग में क्या तमन्ना उभरी
हुई काश मेरा बेटा शेखुल हदीस होता, जो इज्जत इनको मिली है उस इज्जत का हकदार मेरा बेटा हो जाता। तमन्ना कैसी पैदा हुई है, जैसी तमन्ना होती है उसी तमन्ना के मुताबिक आदमी का काम भी हो जाता है। कोई बोलता मेरा बेटा क्रिकेटर हो जाए, उनका बेटा क्रिकेटर बनने की कोशिश करता है। कोई सोचता मेरा बेटा आलिम बाअमल हो जाए, उनका बेटा आलिम बाअमल हो जाता है। जिस तरह की उम्मीद अल्लाह से वाबस्ता करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से भीख मांगे, अल्लाह उस बंदे की उम्मीद के मुताबिक वैसा काम कर देता है अपने फजल से। इसमें प्लान अच्छा रहना चाहिए, उम्मीदें अच्छी रहनी चाहिए, ख्यालात अच्छे आने चाहिए। तंग ख्याल, छोटा ख्याल, नैरो माइंडेड नहीं बनना चाहिए। ख्याल वसी रहे, ख्याल कुशादा रहे। बच्चे खूब मेहनत से पढ़े और बोले मैं यूपीएससी फेस करूंगा, यूपीएससी फेस नहीं भी कर पाया, वो नहीं निकाल पाया, कम से कम बीपीएससी तो निकाल पाएगा। अगर वो बड़े प्लान के तहत वो मेहनत करेगा 10-10, 12-12, 15-15 घंटे, अगर उसको नहीं फेस कर पाया, उससे जो नीचे वाला कंपटीशन है उसमें कामयाब तो हो ही जाएगा। और जो पहले ही दिन से समझ लिया हमें मैट्रिक पास करना है, ट्यूशन पढ़ाना है, हमें आईए पास करके हमें किसी प्राइवेट स्कूल में एक जॉब करके 4000 महीना कमाना है, फिर उसका प्लान ही छोटा है, वो कैसे बड़े असाइन को पा पाएगा। प्लान बड़ा रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस प्लान की तकमील की दुआ करता रहे। और आदमी जब खुद अच्छा होगा उनके दिमाग का ख्याल भी अच्छा होगा। 30 साल सरहद पे रह के जो इस्लाम को बचाया हो, उनका ख्याल भी कितना शानदार उभरा है दिल में। काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता, यानी नस्लें मेरी फख्र करती। हदीस का दर्स मुकम्मल हो गया। वह सरहद इस्लाम पे रहने वाला 30 साल जवानी लगा के आने वाला पहली बार अपने घर पहुंचा है। 30 साल की लंबी जुदाई के बाद जब घर में दाखिल हुआ, उनकी अहलिया 30 साल के बाद वह ज़ईफा हो चुकी थी। अपनी अहलिया के पास बैठकर अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं पहले किस सरहद पे गया, फिर कहां गया, और पूछा मैंने जो कई हजार सोने के सिक्के मैंने आपको दिया था, उस सिक्के का इस्तेमाल आपने कैसे किया। अब बीवी भी उनसे दास्तान सुनाने लगी कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी। यहाँ 4 साल मेरी माँ का शौहर चला जाए बंबई, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। यहाँ अफरा तफरी की जिंदगी गुजरने लगती है, उनके दिल और दिमाग में गंदे ख्यालात आने लगते हैं, न जाने कैसे कैसे घिनौने काम होते हैं। क्योंकि वहाँ दीन नहीं है, जहाँ सिर्फ खाना है, जहाँ सिर्फ कपड़ा बदलना है, जहाँ जेवर का मुकाबला, खाने का मुकाबला, मकान का मुकाबला, वहाँ शहवत का मुकाबला होगा। अगर चाहते हैं कि औरतें घर में ठीक से रहें, मैं बाहर रहूं, एक ही रास्ता है, 24 घंटे की रूटीन अपने घर में औरतों को दे दे। फजर की नमाज से पहले उठना है, 2 रकात तहज्जुद पढ़ लेना है, 1000 बार कलमा पढ़ लेना है, फजर के बाद कुरान पाक की कुरान पाक के 2 पारे पढ़ लेना है, दीनी किताब पढ़ना, फिर हाथ में झाड़ू लेना है। ऐसा नहीं कि पहले झाड़ू लेके साफ करने लगे घर को। किसने कहा कि झाड़ू सूरज उगने से पहले लगा देना चाहिए? नहीं, झाड़ू लगे 10 बजे कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता सूरज निकलने से पहले 2 रकात नमाज अदा होनी चाहिए। पहले नमाज पढ़ ले, कुरान की तिलावत कर ले, उसके बाद हाथ में झाड़ू ले। उस झाड़ू से कुछ नहीं होने वाला है। फरिश्ते सुबह सुबह घर में दाखिल होते हैं, रहमत लेकर, रोजी लेकर। घर का दरवाजा बंद, औरत मर्द सारे लोग सोए हैं, तो फिर उस घर में बेबरकती पैदा होती है। यहाँ कुछ नहीं, पहले उठ के आंख मल के झाड़ू लगाना है, पहले आंख मलने के बाद वजू करके पहले रब को सजदा करना है। जिस घर में सजदे और नमाज का माहौल होता है, उस घर में रहमतें, उस घर में बरकतें नाजिल होती है। 24 घंटे की रूटीन अब औरतों को दे दे। नमाज फजर अदा करने के बाद तस्बीह, फिर आप नाश्ता बनाए, आप घर की सफाई करें, जोहर की नमाज के बाद थोड़ी देर आप आराम करें, उसके बाद फिर किताब लेके बैठ जाए। अगर बच्चे हैं तो उनको लेके बैठ जाए, असर की तैयारी करें, असर से मगरिब के बीच में खाना वगैरह तैयार कर ले, मगरिब की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़े, वाक़िया पढ़े, दुखान पढ़े, सजदा पढ़े, 5-10 सूरतों की तिलावत करें। इशा की नमाज पढ़ने के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाए, फिर रात में उठे तहज्जुद पढ़े। यानी किताब पढ़ने से फुर्सत न मिले, वो कजिन से बात करे, वो सूरह पढ़ने से फुर्सत न मिले, वो अपने देवर से बात करे, वो किताब पढ़ने से फुर्सत न मिले, वो टेलीविजन देखे, फिर क्या होगा? उनके दिमाग में आखिरत की बातें रच बस जाएंगी, फिर वो गुनाहों से बचेंगी। फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि दिमाग में शैतान कोई गंदा ख्याल डाले। यहाँ ना तिलावत में इबादत है, सुबह उठना है टेलीविजन देखना है, नाश्ता खाना है टेलीविजन देखना है, दोपहर खाना खाना है टेलीविजन देखना है, असर के बाद टेलीविजन, मगरिब के बाद टेलीविजन, रात के 2 बजे तक टेलीविजन, और दिन के 10 बजे उठना है। यानी जो धारावाहिक देखे, जो सिनेमा देखे, 24 घंटे टीवी से चिपकी
बीवी रहे, वहाँ गंदे गाने, वहाँ गंदे डांस, फिर दिमाग में क्या ख्याल पैदा होगा? उनके बदन में थ्रिलिंग पैदा होगी। शौहर बंबई में है, शौहर सऊदिया में है, और यहाँ बदन में आग लग गई सिनेमा देखकर, इस आग को कैसे बुझाएगी? अब वहीं पे खतरा जन्म लेता है। शौहर सऊदी अरब में, यहाँ गर्म गजा है, गोश्त मछली डेली खाना है, गर्म लिबास, गर्म गजा, गर्म मनाजिर, टीवी गर्म, मोबाइल गर्म, स्क्रीन के पर्दे पे सीट्स गर्म, यानी लिबास गर्म, गजा गर्म, माहौल गर्म। उस गर्म माहौल में अजनबी मर्द घर में ट्यूशन पढ़ाने आए, अजनबी मर्द घर में दूध देने आए, अजनबी मर्द घर में चूड़ी पहनाने आए, अजनबी मर्द घर में चादर बेचने आए। ये कहानियां होती है। 4 बच्चों की माँ चादर बेचने वाले के साथ भाग गई, 5 बच्चों की माँ दूध देने वाले कुआले के साथ भाग गई, 6 बच्चे की माँ यानी दादी बनने वाली, जो दादी भी है नानी भी है, यानी पोते की मौजूदगी में, नवासी की मौजूदगी में, वो बुढ़िया एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। ये जो है लिबास गर्म है, गजा गर्म है, मोबाइल गर्म है, टेलीविजन गर्म है, सोसाइटी गर्म है, और वहां कोई हिजाब नहीं, कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं, और प्यास बुझाने के लिए अजनबी मर्द भी सामने गर्म है। तो रहे शहर सऊदिया में, वो सारा काम यहाँ होगा, रहे शहर दिल्ली पंजाब में, वो सारा काम यहाँ होगा। अगर हम चाहते हैं कि मैं 10 साल भी बाहर रहूं, मेरे घर में कोई बेहयाई का मंजर ना हो, तो बीवी के हाथ में टेलीविजन नहीं, उनके हाथ में तस्बीह, उनके हाथ में कुरान, उनको इबादत का खूगर बना दे। रहे 30 साल सरहद पे, मदीने का मुजाहिद 30 साल के बाद आया है, औरतों की हया को देख के दंग रह गया कि वह खुद परहेजगार, जिनके सर के बाल को अजनबी मर्द ने नहीं देखा, शौहर दीन के काम में है तो अल्लाह की बीवी की हिफाजत करता है, उसके बच्चों की हिफाजत करता है। जो दीन की हिफाजत करता हो, अल्लाह उनके घर बार की हिफाजत करता है। और वो उजला जो खुद पंजाब और दिल्ली में जोकर बन गया, वो वहां उजड़ रहा है, उनकी बीवी घर में उजड़ रही है, वह वहां दूसरों की बेटी को ताकता है, उनकी बेटी यहाँ दूसरों को ताकती है। ये दुनिया में इस हाथ से न उस हाथ से ले। इमाम शाफी फरमाते हैं ज़िना एक कर्ज है, अगर किसी ने किया है ये कर्ज उनकी औलाद से वसूल किया जाएगा। मदीने का मुजाहिद वो अपनी बीवी के पास गया, अभी बात ही कर रहा था, 30 साल के बाद लौट के आया है, अपनी बीवी से महवे गुफ्तगू है। इसी दौरान वही मस्जिद नबवी का शेखुल हदीस जो मदीने के उलमा को दर्स हदीस दे रहा था, वो उनके घर के अंदर दाखिल हुआ। अब ये मुजाहिद मदीना उससे कहते हैं कि आप शेखुल हदीस है अपनी जगह, लेकिन बगैर इजाजत के मेरे घर में दाखिल कैसे हो गए? चाहे पीर रहे, चाहे बड़ा आलिम रहे, अगर शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाए तो आम मुसलमान को हक हासिल है, वह उनसे मुहासबा करे, हिसाब ले। ऐसा नहीं कि बहनोई है तो चलो सारी उनके साथ बंद कमरे में हो जाए, मौलाना है तो रहे बंद कमरे में। नहीं, मदीने का मुजाहिद जो शेखुल हदीस की तरह औलाद की तमन्ना की थी, वो जब उनके घर में दाखिल हुआ, ये उनसे कहने लगे आप बगैर इजाजत घर में दाखिल कैसे हो गए? अब वो शेखुल हदीस मदीना कहते हैं आप, ये मेरा घर है, वो मेरी माँ है, आप ये बताएं कि मेरे घर में आप अजनबी कैसे दाखिल हो गए? यानी अब वो मदीने का शेखुल हदीस, चूंकि 30 साल के बाद मुजाहिद लौट के आया है, इस 30 साल के अंदर जो अमानत वो अपनी बीवी के शिकम में सुपुर्द करके गया था, यानी बीवी उनकी हामिला थी, उनकी गैर मौजूदगी में बच्चा तवल्लुद हुआ, वह बात जवान हो गया है 30 साल का। इस दौरान में पढ़ा लिखा आलिमों का सरदार बना। अब वो बाप का चेहरा कभी नहीं देखा था, बाप को देखा, अब वो कहता आप अजनबी मेरे घर में कैसे आ गए? ये तो मेरा घर है। और वो मुजाहिद कहने लगे आप अजनबी मेरे घर में कैसे आ गए? ये तो मेरा घर है। अब ज़ईफा माँ अंदर से कहती है ए बेटा मत उलझ, ये तुम्हारे वालिद गिरामी है जो 30 साल के बाद सरहद इस्लाम की हिफाजत करके आज लौटे हैं। यानी दोनों आपस में इस कदर गुलूगीर हो गए, मोहब्बत के आंसू आंखों से छलकने लगे। यानी मुजाहिद उनका बाप था और वह शेखुल हदीस उनका बेटा था। औरत कहती है शोहर वो जो 30-40 हजार सिक्के सोने के आपने दिया था, उस सिक्के को मैंने आपकी इसी औलाद की तरबियत में मैंने सारे सिक्के सर्फ कर दिए हैं। यानी जब माँ अपने आप को सुरक्षित रखने वाली और बाप मुजाहिद इस्लाम पर का
सरहद पे इस्लाम को सुरक्षा देने वाला हो, तो उन दोनों के मिलन से जो बच्चा तवल्लुद होता है वह रबीअतुर राय नामी इस्लामी तारीख का अजीम मुहद्दिस पैदा होता है। यानी जब बाप लाजवाब हो, जब माँ लाजवाब हो और घर का माहौल ऐसा लाजवाब हो, वहां पलने वाला बच्चा आवारा नहीं होता, शेखुल हदीसी के मनसब पे फाइज होता है।